Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine and safe. Our lesson for today is unit number 9, the choices we make of Oxford Social Studies for grade 4. Choices का मतलब होता है इंतखाब करना. The choices we make मतलब हम जो इंतखाब करते हैं. Students, choice means selection. It is the act of picking or deciding between two or more possibilities. In this chapter, we will study about wants and needs, about what is an economic choice, and about the goods and services. So let's start our lesson now. There is a difference between wants and needs. ज़रूरियात और ख्वाहिशात में फ़र्क होता है. Needs का मतलब होता है ज़रूरियात और wants का मतलब होता है ख्वाहिशात. A want is something you would like to have but do not really need. For example, a pair of shoes you have seen and like very much. ख्वाहिश कोई ऐसी चीज़ होती है जो हम चाहते हैं कि हमारे पास हो मगर हमें वाकई उसकी ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि कोई ऐसे जूते जो हमने कहीं देखे हों और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हों. You do not really need them because you already have shoes. हमें असल में उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से जूते मौजूद हैं. Needs are things that are necessary, for example, a dictionary. ज़रूरियात ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बहुत अहम हों, जैसा कि डिक्शनरी. Because of limited resources and unlimited wants, we have to choose between what we should have and what we can do without. महदूद वसाइल और लामहदूद ख्वाहिशात की वजह से हमें इंतखाब करना पड़ता है कि हमें कौन सी चीज़ खरीदनी है और हम किस चीज़ के बगैर रह सकते हैं. This is called economic choice और इस अमल को हम मुआशी इंतखाब कहते हैं. Students, we want a lot of things in life. When we go to a shop or a mall, a number of things attract us. But before making our purchases, we must consider how much money we have. We always have limited resources, which means that the amount of money we have is never enough to buy everything we want. That is why we have to pick and choose. We have to decide what we really need to have and what we can do without. This helps us to spend money in the best way. This is called economic choice. An economic choice has to be made because we have limited resources. हमें मुआशी इंतखाब इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे वसाइल महदूद होते हैं. In simple words, there is a limit to how much money we have. आसान अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास एक महदूद रकम होती है. Because of limited resources, there is another thing we have to think about. This is called the opportunity cost. महदूद वसाइल की वजह से हमें किसी और चीज़ का इंतखाब करना पड़ता है जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब मौका लागत कहते हैं. It is what we have to do without in order to have something in its place. इसका मतलब ये होता है कि हम एक चीज़ का इंतखाब करके दूसरी चीज़ को छोड़कर रह सकते हैं. For example, if you decide to buy a dictionary instead of the shoes, then the shoes are your opportunity cost. मिसाल के तौर पर अगर आप ये फैसला करें कि आपको जूतों की बजाय एक डिक्शनरी खरीदनी है तो जूते आपके मौका लागत या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएंगे. When choosing between two things, we have to decide which one is more important and will give us more benefit. दो चीज़ों के दरमियान इंतखाब करते वक्त हमें इस बात का फैसला करना होता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा अहम है और हमें ज़्यादा फ़ायदा देगी. What if I buy the shoes? अगर मैं जूते खरीद लूँ तो क्या होगा? I can wear them to parties and people will admire them. मैं पार्टी में उनको पहन सकूँगा और लोग उनकी तारीफ़ करेंगे. What if I buy the dictionary? अगर मैं डिक्शनरी खरीद लूँ तो क्या होगा? I will not have to borrow my friend's dictionary all the time. मुझे हर वक्त अपने दोस्त की डिक्शनरी उधार नहीं लेना पड़ेगी and will be able to use it at home as well. और मैं उसे घर पर भी इस्तेमाल कर सकूँगा. It will be mine forever. ये हमेशा मेरी रहेगी and will help me learn the meanings of new words. और मैं इस तरह नए अल्फाज के मायने सीख सकूँगा. What would you choose between the two things? The thing you do without would be the opportunity cost. अब आप इन दोनों में से कौन सी चीज़ का इंतखाब करेंगे? अब इनमें से जिस चीज़ का आप इंतखाब करेंगे वो आपकी ज़रूरत होगी और जिस चीज़ को आप छोड़ देंगे और उसके बगैर रह सकेंगे वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी.
वी हैव टू मेक दिस चॉइसेस वेरी ऑफन। हमें अक्सर औकात ये इंतखाबात करने पड़ते हैं। शुड आई स्पेंड माई मनी ऑन चिप्स और बिस्किट्स? कि क्या मैं अपने पैसे चिप्स और बिस्किट पे खर्च करूं? शुड आई स्पेंड माई ईदी ऑन ए टॉय और ए बुक? या क्या मैं अपनी ईदी खिलौने खिलौने खरीदने के लिए इस्तेमाल करूं या फिर कोई किताब लेने के लिए? द चॉइसेस वी मेक आर नॉट ओनली फॉर थिंग्स। जो इंतखाब हम करते हैं वो सिर्फ चीज़ों के लिए नहीं होते। इफ़ यू चूज टू स्टडी एंड मिस योर फेवरेट टीवी शो, यू विल गेट बेटर मार्क्स इन द एग्ज़ाम। अगर आप अपना पसंदीदा टीवी प्रोग्राम छोड़कर पढ़ाई का इंतखाब करते हैं तो आप इम्तिहान में अच्छे नंबर ले सकेंगे। If you choose to enjoy yourself and have fun watching TV now, you will not have the pleasure of getting good marks. और अगर आप पढ़ाई को छोड़कर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखेंगे तो आप अच्छे नंबर नहीं ले सकेंगे। In the same way, इसी तरह governments also have to make economic choices. हुकूमतों को भी मौशी इंतखाबात करने पड़ते हैं। They have limited funds and have to think about the opportunity cost of every project they undertake. उनके पास महदूद फंड होते हैं और जब वो कोई भी मंसूबा शुरू करते हैं तो उनको मौका लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सोचना पड़ता है कि वो कौन सी चीज़ को छोड़ सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द चॉइस में हैव टू बी मेड बिटवीन बिल्डिंग ए पार्क और ए हॉस्पिटल। मिसाल के तौर पर हुकूमत को इंतखाब करना पड़ता है कि पार्क बनाना है या फिर हस्पताल। नाउ वी हैव गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब होता है अशिया और सर्विसेज का मतलब होता है खिदमात। स्टूडेंट्स, गुड्स आर आइटम्स दैट आर यूजुअली टेंजिबल सच एज पेन, सॉल्ट, हैट एंड एप्पल्स एटसेट्रा। And services are activities provided by other people which includes doctors, dentists, barbers and waiters etc. Goods are objects that you can hold in your hands and use. मतलब गुड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्विसेज, ए सर्विस इज़ द वर्क समवन डज फॉर यू। सर्विस कोई ऐसा काम होता है जो कोई आपके लिए करता है। Goods are objects that you can hold in your hands and use. They are items that we buy like food, books and clothes. Goods ऐसी अशिया या फिर सामान होता है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम खरीदते हैं जैसा कि खाने पीने की अशिया, किताबें या फिर कपड़े वगैरह। A service is the work someone does for you. सर्विस कोई ऐसा काम होता है जो कोई आपके लिए करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हैविंग ए हेयर कट, हैविंग क्लोथ्स मेड एंड हैविंग द हाउस पेंटेड। मतलब किसी से बाल कटवाना, कपड़े सिलवाना या फिर अपने घर को पेंट करवाना। द हेयर ड्रेसर, टेलर एंड द पेंटर आर प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज। और ये खिदमात एक दर्जी, नाई और पेंटर कर रहे हैं। वी हैव टू कंसिडर मैनी थिंग्स व्हेन बाइंग ए पर्टिकुलर आइटम। किसी भी चीज़ को ख़रीदते वक्त हमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। There are similar items available in the market and we have to make the best choice. मार्केट में एक तरह की बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं और हमें बेहतर इंतखाब करना होता है। We should consider the following things: price, quantity, quality, value for money and taste. Students, while buying anything, we should consider its price, its quantity, about its quality, about the value for money and about its taste. We should compare prices for similar items. हम एक जैसी चीज़ों की कीमत को कंपेयर या फिर उसका मवाजना कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर ए पैकेट ऑफ बिस्किट्स। बिस्किट के एक पैकेट का। बिस्किट्स आर मेड बाय मैनी कंपनीज। बिस्किट बहुत सी कंपनियों की तरफ से बनाए जाते हैं। दे ऑल कम इन डिफरेंट पैकेजिंग एंड हैव डिफरेंट प्राइसेस। और इनकी मुख्तलिफ कीमतें होती हैं। द वेट, क्वालिटी एंड टेस्ट डिफर। इनका वज़न, मेयार और जायका मुख्तलिफ होता है। वी शुड चूज़ द आइटम दैट विल गिव अस द मोस्ट सेटिस्फैक्शन। लेकिन हम ऐसे बिस्किट का इंतखाब करेंगे जिससे हम मुतमईन हों। सिमिलरली, इसी तरह व्हेन चूजिंग ए सर्विस, एक खिदमत का इंतखाब करते हुए, लाइक ए डेंटिस्ट और ए हेयर ड्रेसर, जैसे कि एक डेंटिस्ट या फिर नाई, वी शुड कंसिडर द फॉलोइंग। हमें ये चीज़ें जहन में रखनी होती हैं। नंबर 1, प्राइस, उसकी कीमत। नंबर 2, क्वालिटी ऑफ सर्विस, उसकी खिदमत का मेयार। वी शुड मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द रेट्स चार्ज्ड बाय डिफरेंट डेंटिस्ट एंड हेयर ड्रेसर्स एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफर्ड बाय देम।
कोई भी डेंटिस्ट या नाई जितने भी पैसे लेता है, हम उनका मवाजना करते हैं और ये देखते हैं कि वो कितनी अच्छी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। We can also ask our friends to recommend someone they are satisfied with. हम अपने दोस्तों से भी मशवरा ले सकते हैं कि वो किससे मुतमईन हैं। Finally, we should make a decision. और फिर आखिर पे हम अपना फैसला करते हैं। It is very important but the goods and services we chose satisfy our wants and needs. ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम जिन अशिया और खिदमात का इंतखाब करते हैं वो हमारी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करें। Now come towards questions on page number 75. The first question is what is an economic choice? मुआशी इंतखाब से क्या मुराद है? The answer is economic choice is the choice between what one wants and what one needs. मुआशी इंतखाब का मतलब होता है ज़रूरियात और ख्वाहिशात के दरमियान इंतखाब करना। The next one is what is the opportunity cost of something? किसी भी चीज़ की मौका लागत क्या होती है? The answer is opportunity cost is the choice between two things, one which is essential and the other which is also desired but one can live without. Opportunity cost का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान इंतखाब करना। एक वो चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और दूसरी ऐसी चीज़ जिसके बगैर आप रह सकते हैं। For example, a choice between a pencil box and a pair of pencils. The pencil box is desired but one can live without it. So the pencil box becomes the opportunity cost. The last question is give two reasons why we should buy what we need and not what we want. मतलब दो वजूहात दें कि हमें ऐसी चीज़ खरीदनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत है, ना कि ऐसी चीज़ जिसकी हम ख्वाहिश कर रहे हैं। The answer is we should buy what we need because what we need is essential for life and more important. हमें ऐसी चीज़ खरीदनी चाहिए जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अहम होती है। Things we need will also benefit us. जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो हमें फ़ायदा भी देती हैं। Question number 2 is write whether each is a good or a service. Students, as I told you already that goods are items that are usually tangible such as pen, salt or apples etc. and services are activities provided by other people which includes doctors, dentists and waiters etc. Now you have to write whether each of these is a good or a service. The first one is you have your hair cut. This is a service. The second one is you buy a book. Obviously, this is a good. The third one is you buy your sister a present. This is also a good. The next one is your father pays the plumber to repair the pipes. This is a service. The next one is you visit doctor for a checkup. This is also a service. The next one is your uncle pays you for washing his car. This is also a service. The next one is you pay your sister ₹5 to clean your messy bedroom. This is a service. You buy an ice cream. This is an object, so this is a good. You buy your bus fare. When you pay your bus fare, you are performing a service. The last one is your father pays the bill at a restaurant. This is a service. With this, our lesson comes to an end. Stay blessed. Allah Hafiz.